अमेरिका की सत्ता के दो सबसे ताकतवर चेहरे अब आमने सामने हैं। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, जो कभी मंच साझा करते थे, आज सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं। ईवी सब्सिडी से लेकर नासा तक ये लड़ाई अब सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि अहम की हो गई है, अहंकार की हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति उद्योगपति एलन मस्क के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती अब खुलकर दुश्मनी में बदल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और मस्क एक दूसरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दरअसल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रंप के समर्थन में जबरदस्त कैंपेन चलाया था और कई मौकों पर सार्वजनिक रैलियों में शिरकत भी की थी। मस्क को इसका इनाम भी मिला और उन्हें डॉज का प्रभार सौंप दिया गया। लेकिन फिर आया ट्रंप का महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे जोर शोर से पारित किया गया। मस्क ने पहले दबी जुबान में इसका विरोध किया और बात नहीं बनने पर खुलकर इसके विरोध में अब खड़े हो गए। इस बिल का मस्क की ओर से विरोध किए जाने की वजह सामने आई कि इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, जिससे मस्क के टेस्ला की बिक्री पर सीधे सीधे असर पड़ता है। इस बिल को विध्वंसक बताते हुए ट्रंप पर रातों रात हमले कर दिए। हालांकि इन सब बवाल के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क पर तीखा हमला भी बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मस्क बिल के हर हिस्से से वाकिफ थे, लेकिन जब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी को हटाया गया, तभी उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। एक बार सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देते हुए एलन मस्क के बारे में क्या कुछ कहा है। The criticism that I've seen, and I'm sure you've seen, regarding Elon Musk and your big, beautiful bill, what's your reaction to that? Do you think it in any way hurts passage in the Senate, which of course what is you're seeking? Well, look, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. And, Elon's upset because we took the EV mandate, and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. That's been, I would say, JD, that hasn't changed. That's been right from the beginning. Mr. Secretary, that hasn't changed at all, right from the beginning. But I know that disturbed him. He wanted, and rightfully, he recommended somebody from, that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges, we don't have to appoint a Democrat. But he wanted that person, a certain person, and we said no. And, I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. And even with the black eye, I said, you want a little makeup? We'll get you a little makeup. But he said, no, I don't think so, which is interesting and very nice. He wants to be who he is, so you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great, big, beautiful bill. We call it a great, big, beautiful bill because that's what it is. Elon endorsed me very strongly. He actually went up in campaign for me. I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. Better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline
combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different, and I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody, and he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me, and he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. ट्रम्प ने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें ये महीनों पहले कर देना चाहिए था। ये संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन बिल है। इससे सरकार का भारी भरकम खर्चा बचेगा और टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। अगर यह बिल पारित नहीं होता तो टैक्स में 68% की बढ़ोतरी होती। ट्रम्प के बयानों पर मस्क ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। पोस्ट की एक झड़ी लगाते हुए ट्रम्प के दावों को उन्होंने झूठा करार दिया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है एक्स पर हम आपको बता देते हैं। पहला ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रम्प का दावा झूठ है, ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया था। उन्होंने लिखा सच एन ऑब्वियस लाई, सो सैड। फिर से एक ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना सफेद झूठ बेहद दुखद है। तीसरा ट्वीट उनका थोड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, ट्रम्प इज इन एप्स्टीन फाइल्स। यानी अब वक्त आ गया है बड़ा खुलासा करने का। ट्रम्प का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है और इस ट्वीट ने काफी नजरें अपनी तरफ घुमा दी। दरअसल एप्स्टीन फाइल एक अमीर कारोबारी से जुड़ी हुई है। इस पर 2019 में यौन तस्करी और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। एप्स्टीन के मामले की परतें उस वक्त खुली जब वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की महिला ने सामने आकर कई खुलासे किए थे। इसी साल एप्स्टीन विवाद से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया गया है जिनमें कई अहम जानकारी और उसके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता चला है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप और मस्क अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। ट्रंप ने सिलसिलेवार पोस्ट कर मस्क पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है और निशाना साधते हुए ये कहा कि हमारे बजट की एक भारी भरकम धनराशि खर्च करने से बचाने का आसान तरीका है कि मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। मुझे हैरानी है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। दरअसल ट्रंप की धमकी के बाद मस्क की कंपनियों जैसे कि टेस्ला और स्पेसएक्स को बड़ा झटका भी लग सकता है। इस पर मस्क भी चुप नहीं बैठे, फिर से पलटवार कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के राष्ट्रपति के बयान के मद्देनजर स्पेसएक्स जल्द ही अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की डीकमीशनिंग शुरू कर देगा। ट्रंप ने कहा कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि मैंने उन्हें डॉज छोड़ने को कह दिया। मैंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया। इसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मजबूर हो रहे थे। इस वजह से मस्क क्रेजी हो गए हैं। इसका जवाब देते हुए फिर मस्क ने कह दिया कि ट्रंप के टैरिफ से इस साल की दूसरी छमाही में मंदी आ सकती है। जो अब तक बड़े बड़े विशेषज्ञ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब मस्क भी कहने लगे। मस्क को ट्रंप से आखिर दिक्कत क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इस बिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने का प्रस्ताव है। बाइडेन सरकार नई ईवी खरीदने पर $7,500 की टैक्स छूट देती थी। ट्रंप अब इसे खत्म करने जा रहे हैं। इस बिल में प्रावधान है कि जो कंपनियां 2009 से 2025 के बीच 2 लाख ईवी बेच चुकी हैं उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ये सीधे तौर पर एलन मस्क की टेस्ला के लिए एक बड़ा झटका है और झटका आ रहा है ट्रंप सरकार की तरफ से। यह अन्य वजह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में हालांकि ट्रंप ने उनकी सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया था। मस्क का मानना है कि अगर इसाकमैन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो उससे उनकी कंपनी स्पेसएक्स को भी फायदा होगा। ट्रंप ने मस्क को डॉज की जिम्मेदारी सौंपी थी जिसका काम सरकारी खर्च में कटौती करना था। ट्रंप ने उन्हें एक तरह से बेकार और फालतू खर्च कम करने के लिए कहा था। इसके लिए डॉज ने हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों की छटनी की। इससे एलन मस्क की छवि को नुकसान पहुंचाया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि मस्क अपनी मर्जी से लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप अपने बिल को देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कट योजना बता रहे हैं, वहीं एलन मस्क इसे पार्क से भरा हुआ बड़ा और खुरूब बिल बता रहे हैं। ये टकराव सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहा, अब ये सत्ता और अहंकार की लड़ाई में बदल चुका है।
ट्रंप मस्क टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, अरबों डॉलर के बिजनेस और हजारों नौकरियों पर असर डालने वाला बन चुका है। टेस्ला और स्पेसएक्स पर मंडराते खतरे, डॉज की नीतियों पर मचे बवाल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की भविष्यवाणी। ये कहानी आगे आने वाले अमेरिकी चुनावों में सिर्फ सियासत नहीं, बिजनेस की दिशा भी तय कर सकती है। इन दोनों के बीच के टकराव पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या इसका असर आपको लगता है कि ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी पर पड़ सकता है? क्योंकि यूएस इकोनॉमी से जुड़ी हुई है दुनिया की कई और देश की अर्थव्यवस्थाएं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बिज़ तक।